Good morning, all of you. Today we are going to discuss single mode and multi-mode fiber, difference between single mode and multi-mode fiber. So there are some specification of through which we have discussed the basic difference and similarities of single mode and multi-mode fiber. So first specification is cost of fiber. Single mode fiber is less expensive, while due to large core area, multi-mode fiber is more expensive as compared to single mode fiber. Transmission equipments which are used in single mode fiber is more expensive, and the equipment which are used in multi mode fiber like LED are these materials are low cost. So laser is basically used for single mode fiber and LED is used basically in multi mode fiber. Attenuation, only one ray propagate in single mode fiber, so attenuation is low in single mode fiber, and in multi mode fiber due to number of multiple rays propagate, so attenuation is high in multi mode fiber. Transmission wavelength is 1260 to 1640 nanometers. Yesterday in previous class we have discussed that wavelength is approx 800 to 1300, 1300 to 1500 nanometer, which is similar to 1260 to 1640 nanometers. In multimode fiber, transmission wavelength is 850 to 1300 nanometer. Application where single mode fiber is used are connections are more complex in single mode fiber. In multi-mode fiber, large core area and it is easy to handle. Distance is also the specification of single mode and multi-mode fiber. So single mode fiber access greater than 200 km and used for the distance range is more than 200 km, and in multi-mode fiber the area is less than 2 km. Bandwidth of single mode fiber is larger than bandwidth of multi-mode fiber. In multi-mode fiber, limited bandwidth that is 10 GB per second over a short distance, and single mode fiber bandwidth is greater than 1 TB per second. Advantage and disadvantage, we have discussed. Advantage of single mode fiber is provides higher performance, but building the network is expensive. Performance is high of single mode fiber, but it is more expensive than multi mode fiber. The fiber is more costly. This is the point for multi mode fiber. Fiber is more costly, but network deployment is relatively inexpensive. So this is a basic difference of single mode and multi mode fiber. Difference between step index fiber and graded index fiber. So step index fiber and graded index fiber. The refractive index of the core is uniform in step index fiber, though undergoes on abrupt changes to core cladding boundary. In graded index fiber, the refractive index of core is made very gradually and such that it is maximum at the center of the core. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कोर का ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। ग्रेडेड इंडेक्स में कोर के ही डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, जिसके चलते यहाँ पर हेलिकल पाथ यहाँ पर फॉलो होगा। The diameter of the core is about 50 to 200 micrometer in case of multi-mode fiber, and 10 to and approx 10 micrometer in case of single mode fiber.
अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कोर का जो होगा 50 to 200 माइक्रोमीटर सिंगल मोड में होगा। मल्टी मोड फाइबर में जो डायमीटर होगा वो कहीं ज़्यादा होगा। अगर स्टेप और ग्रेडेड इंडेक्स की बात करें, स्टेप इंडेक्स फाइबर का जो डायमीटर होगा वो 50 to 200 होगा और ग्रेडेड इंडेक्स का अप्रॉक्स 50 माइक्रोमीटर। द पाथ ऑफ लाइट प्रोपागेशन इज जिगजैग मैनर। जिगजैग मैनर में स्टेप इंडेक्स में होगा क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज कांस्टेंट। ग्रेडेड इंडेक्स में जो पाथ होगा वो हेलिकल पाथ होगा क्योंकि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चलते चेंज होता जाएगा। एटेन्यूएशन इज मोर फॉर मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर बट फॉर सिंगल मोड इज़ वेरी लेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले भी डिस्कस किया है कि सिंगल मोड का एटेन्यूएशन बहुत कम होता है, मल्टी मोड का एटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टेप इंडेक्स में ओवरऑल एटेन्यूएशन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड के दो पार्ट हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, इनमें अगर बात करें तो एटेन्यूएशन ग्रेडेड इंडेक्स का कम होगा, स्टेप इंडेक्स का एटेन्यूएशन यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे एक पॉइंट दिया है, व्हेन अ रे ट्रेवल थ्रू द लॉन्गर डिस्टेंस देयर विल बी सम डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेड एंगल्स, hence high angle rays arrive later than low angle rays causing dispersion resulting in distort output। अगर हम बात करें ग्रेडेड इंडेक्स की, here the light rays travel with different velocity in different paths because of their variation in their refractive index। At the outer edge it travels faster than near the center, but almost all rays reach the exit at time due to helical path, thus there is no dispersion। इसमें दोनों को अगर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से अगर आप देखें, स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे कुछ रेज रिफ्रैक्शन तो यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, डिस्टॉर्ट आउटपुट मिलेगा, और जिसके चलते यहाँ पर एटेन्यूएशन ओवरऑल ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर की बात करें, एयर लाइट रेज ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट पाथ्स बिकॉज ऑफ देयर वेरिएशन इन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन होने के कारण यहाँ पर लाइट रेज डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हैं। एट द आउटर एज इट ट्रेवल्स फास्टर देन नियर द सेंटर। अगर आउटर एज पे बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, सेंटर के पास वेलोसिटी कुछ और होगी, बट ऑलमोस्ट ऑल द रेज रीच द एग्जिट एट द सेम टाइम ड्यू टू हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ होने के कारण यहाँ पर सभी रेज एक साथ आउटपुट पर पहुँचती है, तो यहाँ पर डिस्पर्शन बहुत कम होता है, यहाँ पर डिस्पर्शन की पॉसिबिलिटी कम होती है। सो ओवरऑल एटेन्यूएशन इज लेस एज कम्पेयर टू स्टेप इंडेक्स फाइबर। द फाइबर हैज़ लोअर बैंडविथ, स्टेप इंडेक्स की बैंडविथ कम होगी, ग्रेडेड इंडेक्स की बैंडविथ ज़्यादा होती है। ये हमने अभी बेसिक डिफरेंस यहाँ पर स्टडी किया सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर के लिए पहले पढ़ा। इसके बाद हमने डिस्कस किया स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अगर ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऑप्टिकल फाइबर से क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है इनॉर्मल पोटेंशियल बैंडविथ, यहाँ पर बैंडविथ बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर OFC ऑफर्स frequency in the range of 10 to power 13 to 10 to power 16 Hz, which yields a far greater than potential bandwidth. At present, the bandwidth available to fiber is not fully utilized, but modulation over 300 km without repeater is possible।
तो इतनी बैंडविड्थ होती है कि बिना रिपीटर के भी यहाँ पर ट्रांसमिशन पॉसिबल है। स्मॉल साइज एंड वेट, फाइबर केबल हैज़ वेरी लेस स्मॉल डायमीटर, डायमीटर बहुत कम होता है, जस्ट लाइक अ हेयर, बालों के इतना इसका डायमीटर होगा। देन व्हेन इट कवर विथ जैकेट्स फॉर अ प्रोटेक्शन, स्टिल दे आर वेरी लाइट वेट। इसमें प्रोटेक्शन लेयर लगाने के बाद भी इसका वेट बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम ग्लास और समटाइम्स अ प्लास्टिक पॉलीमर, ग्लास या प्लास्टिक पॉलीमर से इसको फैब्रिकेट किया जाता है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। सो दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स एंड दे डू नॉट एग्जिबिट अर्थ लूप। तो यहाँ पर स्पार्क वगैरह जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है तो यहाँ पर किसी तरह का स्पार्क वगैरह की दिक्कत नहीं होती है और किसी तरह का इसमें डैमेज, इलेक्ट्रिकल डैमेज किसी भी तरह का इसमें पॉसिबल नहीं है। इम्यूनिटी टू इंटरफेस एंड क्रॉस टॉक, ऑप्टिकल फाइबर फॉर्म डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड एंड आर फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। जैसा कि अभी बताया, इसमें लाइट रे पास हो रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, EMI जो है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। सिग्नल सिक्योरिटी, द लाइट from optical fiber does not radiate significantly and therefore they provide a high degree of signal sensitivity। इसमें लाइट फॉर्म हो रहा है तो सिग्नल की सेंसिटिविटी जो है ज़्यादा होगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिक्योरिटी भी लाइट रेज होने से सिग्नल की सिक्योरिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। लो ट्रांजिएंट लॉस, एटूनेशन क्योंकि यहाँ पर बहुत कम होता है। द एटूनेशन इन ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिकेशन चैनल, सो लो ट्रांजिएंट लॉस। अगर रफनेस की बात किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। मैन्युफैक्चर्ड विथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ द फाइबर में बट क्वाइट स्मॉल, रेडी एज अ ट्विस्टेड पेयर। System reliability and easy of maintenance, it reduces the requirement of intermediate repeaters। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो है, जो रिपीटर्स होते थे उसके रिक्वायरमेंट को इसने कम कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। जो भी रिपीटर्स यूज़ होते थे वो काफ़ी कम हो गए हैं, इसीलिए इसको मोर रिलायबल कहते हैं। सो द रिलायबिलिटी इज़ हाई ड्यू टू प्रेडिक्ट लाइफ टाइम ऑफ 20 to 30 ईयर्स। लाइफ भी इसकी ज़्यादा होती है अगर प्रॉपर इसमें बफर लेयर या जैकेट लगाया गया है 20 to 30 ईयर्स। सो इट इज़ मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू अदर फाइबर्स, अदर चैनल्स। डिसएडवांटेज क्या, ऑप्टिकल केबल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा आता है। द ऑप्टिकल केबल हैज़ लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ही कम होती है, थोड़ा भी ताकत लगाए टूट जाता है। कोएक्सियल केबल से तो बहुत ही ये हल्का होगा। बेंडिंग लॉसेस इसमें बहुत होते हैं, यह कर्स करते हैं। रिपेयरिंग ऑफ फाइबर इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव, रिपेयरिंग इसका डिफ़िकल्ट है, एक्सपेंसिव भी है। ऑप्टिकल केबल कैन बी हैंडल विथ स्किल्ड लेबर्स के ही थ्रू इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या इसके ऑटोमेशन के लिए, इसके सिक्योरिटी के लिए, या ऑप्टिकल फाइबर केबल को पूरा सिस्टम जनरेट करने के लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। So next topic is acceptance angle. Acceptance angle is the maximum angle to the fiber axis at which light ray may enter the fiber axis in order to get propagate। acceptance angle एक ऐसा maximum angle होता है जिस एंगल पर जब कोई लाइट रेज किसी फाइबर के अंदर अगर इंटर करती है तो वो प्रोपोगेट करे। जैसे यहाँ पर अगर देखो, ये फाइबर है,
इसका ये पार्ट कोर का हो गया। अगर इस पार्ट की मैं बात करूँ, ये पार्ट कोर होगा और ये पार्ट जो है किनारे किनारे ये क्लैडिंग है जो सराउंड किया है। कोर में ये एक्सेस हो गया। जब कोई यहाँ से रे इंटर करेगी तो ऐसे एंगल पे इंटर करे, एक्सेस के साथ ऐसा एंगल रहे जैसे यहाँ θ1 है, θ1 की ऐसी वैल्यू रहे कि ये लाइट रे इसके कोर के अंदर प्रोपागेट हो या ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपागेट हो। इसी को एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। तो ऐसा एंगल जिस पर कोई लाइट रे जब किसी फाइबर के अंदर इंटर करे तो वहाँ पर मैक्सिमम प्रोपागेशन हो, इसे ही हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। यहाँ पर एक मीडियम जो है ये ग्लास मीडियम हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। बाहर का मीडियम एयर है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने एन नॉट से रिप्रेजेंट किया। एन नॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर and n1 is the refractive index of core, n2 is the refractive index of cladding. So there are total here 3 refractive index, n0, n1 and n2. n0 is the refractive index of air outer medium, n1 is the refractive index of core, n2 is the refractive index of cladding. ये हमेशा याद रखना, हर लगभग हर जगह पे ऐसे ही अब तुम्हें मिलेगा, हर बुक में यही लेता है n0, n1, n2. n0 means there is no value of refractive index is 1. So 3 refractive indexes are there and the ray enters in the optical fiber at the refractive index area of n0 means air. बाहर से हमने फाइबर के अंदर लाइट रेस को इंटर कराया। So the acceptance angle θ1 when launching light into an optical fiber, यही θ1 द एक्सेप्टेंस एंगल जो है वो θ1 है। इसी के थ्रू हम इसी एंगल से हम लोग लाइट रेस को फाइबर के अंदर एंटर करा रहे हैं। सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अगर यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है तो स्नेल्स लॉ का मैंने बताया था n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। यहाँ से अगर देखो तो दो मीडियम है, एक मीडियम n0 है, एक मीडियम n1 है। तो यहाँ का मीडियम n0 हो जाएगा, यहाँ का एंगल θ1। दूसरा मीडियम है हमारा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, एंगल है θ2। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2। ये स्नेल्स लॉ है। तो n1 की जगह एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हमने यहाँ पुट कर दिया n0। θ1 के जगह वहाँ पे भी एंगल θ1 ही दिया है तो एज इट इज़ रख दिया sin θ1। n2 दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का है यहाँ पे n1, तो हमने n1 पुट किया और यहाँ पे एंगल हो जाएगा sin θ2। ये है आपका θ2। यहाँ पे अगर अंदर का जो डायग्राम है, अगर इसको ध्यान से देखो, इस पार्ट को हमने एक जगह वहीं बना दिया है। यहाँ की एंगल थी θ2, तो ये एंगल हो गई लाइट इंटर्स की θ2 और लाइट एंट्री कर रही है, जो एंगल यहाँ होगा सेम एंगल यहाँ पर होगा। तो और यहाँ का एंगल 90 है, इस एंगल का नाम हमने दे दिया φ2। तो φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तीनों मिला के होगा 180 डिग्री। तो φ2 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस θ2। तो 180 माइनस 90 माइनस θ2 होगा। तो 180 माइनस 90 मीन्स पाई बाई 2, इट मीन्स वैल्यू ऑफ θ2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 90।
तो थीटा 2 के जगह अगले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एन नॉट साइन थीटा 1 एज इट इज़ लिख दिया, n1 को एज इट इज़ लिख दिया, साइन वाले की जगह साइन कर दिया, थीटा 2 के जगह पाई बाई 2 माइनस फाइव कर दिया, और साइन पाई बाई 2 माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव। सो हमारा इक्वेशन 1 ये आ गया, एन नॉट साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n1 कॉस फाइव। ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखो, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो पहला इक्वेशन एन नॉट साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n1 कॉस फाइव है। एन नॉट साइन थीटा 1 को हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया n1, और कॉस फाइव के जगह कर देंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया इक्वेशन 3। अब क्रिटिकल एंगल के उस दिन मैंने बताया था स्नेल्स लॉ में होता है साइन फाइव इज इक्वल टू n2 बाई n1, क्योंकि रिफ्रैक्शन तभी होगा जब क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल में एन, अगर इस फॉर्मूले को देखो आप लोग, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब इसकी वैल्यू थीटा 1 की ऐसी वैल्यू हो कि थीटा 2 90 हो जाए। तो जब थीटा 1 की वैल्यू ऐसी हो कि थीटा 2 90 हो जाए तो साइन 90 की वैल्यू 1, इट मीन क्रिटिकल एंगल फाई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 by n1, where n2 is the refractive index of cladding, n1 is the refractive index of pore। तो यहाँ से हमने निकाल लिया फाई सी की वैल्यू। साइन फाई सी क्या था, ये हमारा क्रिटिकल एंगल था। क्रिटिकल एंगल को फाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इस फाई की वैल्यू जो है, ये हमारा जो फाई है यही रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर क्रिटिकल एंगल को। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल साइन फाई सी की वैल्यू आ गई n2 बाई n1, और इस वैल्यू को हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। तो जैसे ही फाई की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर, तो एन नॉट साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n1 अंडर रूट 1 माइनस n2 बाई n1 का स्क्वायर आया। तो यहाँ से फार्मूला और इस n1 को अंदर किया तो ओवरऑल फार्मूला आ गया एन नॉट साइन थीटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। और ये जो फार्मूला आता है अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर? अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर मीन्स अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर का स्क्वायर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, स्क्वायर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही होगा न्यूमेरिकल अपर्चर। यहाँ से न्यूमेरिकल अपर्चर आया फार्मूला। अब इसी में अगर हम एयर की बात करें, जैसे एयर के लिए एन नॉट की वैल्यू 1 होती है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर एक तरह से आउटर मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसा कि पीछे आया साइन थीटा 1 इज इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर फार्मूला आ गया अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अगर एयर की बात करेंगे तो, या हम बाहर के मीडियम का अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर है, या कोई ऐसा मीडियम है जिसका कुछ वैल्यू है, तो क्योंकि हमने आउटर मोस्ट पे क्या लिया है, एन नॉट लिया है एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1। यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, यही हो जाएगा फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थीटा 1
जो यहाँ पे आ रहा है इसी को हमने कहा था एक्सेप्टेंस एंगल. इट मीन्स एक्सेप्टेंस एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर. ये हो जाएगा फार्मूला. बट इन केस ऑफ व्हेन आउटर मीडियम इज एयर, अगर एयर है तो न्यूमेरिकल अपर्चर के थ्रू यहाँ पर एक्सेप्टेंस एंगल ये आ जाएगा. इंडेक्स का जो डिफरेंस होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको हम लोग डेल एन से दिखाते हैं. डेल एन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग. सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन थीटा 1, यहाँ से ये फार्मूला आ जाएगा. और थीटा 1 की वैल्यू अंडर रूट एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर कर सकते हैं. इसको हम एन वन माइनस एन टू और एन वन प्लस एन टू कर सकते हैं. अगर एन वन और एन टू लगभग आइडेंटिकल होगा, लगभग बराबर है, तो एन वन माइनस एन टू की जगह हम लिख सकते हैं टू डेल एन, और ये दोनों अगर बराबर है तो टू एन वन. तो ये भी एक न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला आएगा. एंड डेल इज द एन वन माइनस एन टू बाई एन वन. ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? दोनों का डिफरेंस माइनस डिवाइडेड बाई एन वन. तो दोनों के डिफरेंस को हमने यहाँ दिखाया था डेल एन से, क्योंकि डेल एन इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू. सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन थीटा अंडर रूट एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर. तो ये भी एक बेसिक इसका फार्मूला आता है. तो न्यूमेरिकल अपर्चर का एक फार्मूला आया हमारा अंडर रूट एन वन माइनस एन टू स्क्वायर, और यही पर इक्वल टू साइन थीटा 1. यहाँ पर उसी को आगे फॉलो करते हुए एन माइनस एन टू एन वन प्लस एन टू. तो न्यूमेरिकली अपर्चर इज इक्वल टू एन वन इंटू टू डेल्टा. फाइनल फार्मूला आ गया. यहाँ से अगर हम निकालेंगे एन वन माइनस एन टू के जगह हमने रख दिया डेल एन, और एन वन प्लस एन टू की जगह टू एन वन. एन वन को बाहर कर लिया. न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू एन वन इंटू टू डेल्टा. सो लास्टली एक बार और हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्टेंस एंगल. इट इज़ द मैक्सिमम एंगल टू द फाइबर एक्सिस एट विच लाइट रे मे इंटर द फाइबर एक्सिस इन ऑर्डर टू गेट प्रोपगेटेड. एक्सेप्टेंस एंगल वह एंगल है जिस एंगल पर अगर कोई लाइट एक्सिस किसी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंटर करे तो उसका प्रोपगेशन ठीक तरह से होना चाहिए. इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला हमें डिराइव करना है. इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए गए, जैसे स्नेल्स लॉ को पहले फॉलो किया. एयर, आउटर मीडियम और कोर का मीडियम N1, इन दोनों के लिए N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2. ये स्नेल्स लॉ है, नीचे लिखा है. N1 की जगह N0 पुट करके यहाँ से हमने स्नेल्स लॉ को फॉलो किया. थीटा 2 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 5. थीटा 2 की जगह इस वैल्यू को पुट किया तो यहाँ से फार्मूला आ गया N0 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N1 कॉस 5. इक्वेशन नंबर 1 कर दिया. इसके बाद फार्मूला लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब इस फार्मूले को इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 3 लाया. N0 साइन फाई 1 इज इक्वल टू N1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर. यहाँ पर फाई 1 होगा, ये ध्यान देना आप लोग, ये वैल्यू थीटा 1 ना होकर के फाई 1 होगी. अब इस साइन फाई 1 की वैल्यू निकाला थ्रू द क्रिटिकल एंगल. साइन फाई इज इक्वल टू N2 बाई N1. स्नेल्स लॉ के थ्रू आया. क्रिटिकल एंगल तब निकलेगा जब फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री होती है. सो क्रिटिकल एंगल इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ cladding and refractive index of core. Here refractive index of cladding is N2, refractive index of core is N1. So sin phi c is equal to N2 by N1. We put the value of critical angle sin phi c at equation number 3. So N0 sin theta 1 is equal to N1 under root 1 minus N2 by N1 का whole square. यहाँ से हमारा ओवरऑल फार्मूला हो गया N0 sin theta 1 is equal to under root N1 square minus N2 square. It is called numerical aperture. In case of air, N0 is equal to 1, so sin theta 1 is equal to under root N1 square minus N2 square.
it is numerical aperture in case of air. So acceptance angle theta 1 is equal to sine inverse numerical aperture, and numerical aperture is equal to under root n1 square minus n2 square. So overall acceptance angle theta 1 is equal to sine inverse n1 square minus n2 square. Index difference del n is equal to n2 n1 minus n2. So numerical aperture is equal to, from this formula we apply index difference, and we get the formula of relative refractive index, and Na is equal to n1 under root 2 into delta. Okay, thank you class. Thank you.